अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम बायो क्लास 9 नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू बुक चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज एक्सटेंसिव आंसर क्वेश्चंस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ बायोलॉजी इज रिलेटेड विद अदर साइंसेस, शो एंड एक्सप्लेन द लिंक। बच्चों, इसका आंसर है पेज नंबर 9 पर। Here it is its answer, relationship of biology with other sciences। इसमें ये आएगा। और ये टेबल 1.1 रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस, बायोफिजिक्स, रिलेशनशिप ऑफ बायो विद फिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोस्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, बायोजियोग्राफी, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोइकोनॉमिक्स। इसमें ये सारे पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, हाउ बायोलॉजी कैन लीड टू कैरियर ऑफ मेडिसिन, सर्जरी, फिशरीज, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, बायोटेक्नोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, फार्मिंग एंड फॉरेस्ट्री। इसका आंसर है बच्चों पेज नंबर 10 पर। कैरियर्स विच रिक्वायर अ बैकग्राउंड इन बायोलॉजी। इसमें हमारे पास टेबल 1.2 जो आ जाता है। कैरियर्स विच रिक्वायर्ड अ बैकग्राउंड इन बायोलॉजी में फर्स्ट में आ जाता है मेडिसिन, फिशरीज, फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री, बायोटेक्नोलॉजी, हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री। इसमें ये सारा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन दैट साइंस इज अ कोलैबोरेटिव फील्ड। इसका आंसर है बच्चों पेज नंबर 10 पर। ये देख सकते हैं बच्चों, टॉपिक नंबर 5, साइंस इज अ कोलैबोरेटिव फील्ड। इसमें ये आ जाएगा सारा। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच इज व्हाई इज बायोलॉजी important फॉर वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स, गिव रीजन। इसका आंसर है बच्चों यहाँ पे, एज अ फील्ड ऑफ साइंस बायोलॉजी हेल्प्स अंडरस्टैंड द लिविंग वर्ल्ड and the ways its many species, including humans, function, evolve, and interact. Advances in medicine, agriculture, biotechnology, and many other areas of biology have brought improvements in the quality of life. Next question हमारे पास, question number 5, which is give at least 10 examples of farming of animals which can improve economy of Pakistan. Describe the products and benefits of each example as well. इसका आंसर है बच्चों यहाँ पर, ये देखें। Some of examples of farming of animals which can improve economy of Pakistan include bison, dairy cattle, goats, sheep, poultry, camels, asses, ponies, and donkeys. All these examples help the Pakistan economy by giving drought power, significance natural creature, proteins and its side effects, bones, moais, stores away, skin, excrement, fleece, and so on. Milk, egg, margarine, meat, and oil are primary well springs of sustenance that are gigantically essential to great well-being and sufficient nourishment of both country and metropolitan populaces. Numerous items got from animals like fleece items, calfskin items, and creatures stowaway are sent out and contribute together to the securing of unfamiliar trade. Agriculture in Pakistan, being a country which has a generally rustic and horticulture based industry, animal cultivation assumes a significant part in economy of Pakistan and is a significant wellspring job
for some ranchers. It is assessed that there are somewhere in the range of 30 and 35 million individuals in Pakistan ongoing workforce are participated in animals, while the horticulture practice is pervasive, although the whole country it is more considered normal in the ripe regions of Punjab and Sindh, which are customarily the primary areas of agribusiness and cultivating movement. In 2020, the animals business was contributing to 60% in general farming and 11.7% to the gross domestic product. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस biological method of study and its application. Its answer is on page number 11 and 12. Here it is answer biological method. कि बच्चों बायोलॉजिकल मेथड क्या है कि अप्रोच है फॉर सॉल्विंग साइंटिफिक प्रॉब्लम, ठीक है, विच इज़ नोन एज साइंटिफिक मेथड। और इसके सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं विच इंक्लूड रिकग्निशन ऑफ प्रॉब्लम, ऑब्जर्वेशन, बिल्डिंग ऑफ हाइपोथेसिस, ड्राइंग डिडक्शन, डिवाइजिंग एक्सपेरिमेंट, इंटरफेयरिंग रिजल्ट। तो आपने ये सारा इसमें बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास विच इज क्वेश्चन नंबर 7. How biological method is applied to find the cause of malaria? Its answer is on page number 13 and 14. ये ये बच्चों देखें आप मलेरिया एन एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड ऑफ स्टडी। इसमें कह रहा है कि हम बायोलॉजिकल मेथड को यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं कि व्हाट इज द कॉज ऑफ मलेरिया, कि मलेरिया का काज कौन है, ठीक है, काज क्या है। तो इसमें ये आप देखें कि बाय अडॉप्टिंग स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड इट वाज प्रूफ मलेरिया वाज कॉज ऑफ caused by मलेरिया इज caused by प्लाज्मोडियम। ठीक है, प्रॉब्लम क्या थी कि मलेरिया वाज अ प्रॉब्लम है एंशिएंट टाइम से नॉट नाउन, फिर ऑब्जर्वेशंस थी कुछ, देन उसके बाद हमने एक हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट की प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया क्योंकि वो उनके ब्लड में पाया गया था मलेरियल पेशेंट्स के। देन डिडक्शन हमने क्या की कि if plasmodium is cause of malaria then all person ill with malaria should have plasmodium in their blood. then experiment हमने क्या किया कि blood of 100 malaria अपने blood of as control blood of normal 100 healthy persons लिया, हमने एग्जामिन किया। रिजल्ट्स क्या है कि ऑल मलेरियल पेशेंट्स है प्लाज्मोडियम और 7 हेल्थी पर्सनस को भी था बट उनमें इंक्यूबेशन पीरियड में था, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड वो होता है कि जिसमें होस्ट इंटर होता है, अभी सिम्टम्स उसने शो नहीं किए थे डिजीज के, ठीक है। और रिजल्ट्स क्या थे कि कन्विंसिंग टू प्रूव प्लाज्मोडियम इज कॉज ऑफ मलेरिया, ठीक है। तो ये आएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच इज क्वेश्चन नंबर 8. एक्सप्लेन यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड टू अंडरस्टैंड स्प्रेड ऑफ मलेरिया। इस आंसर इज ऑन पेज नंबर 14 एंड 15 कि बायोलॉजिकल मेथड को यूज करके हम स्प्रेड ऑफ मलेरिया को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हियर इज आंसर स्प्रेड ऑफ मलेरिया, इसमें ये आएगा, ठीक है। स्प्रेड ऑफ मलेरिया इसमें भी सेम वही बायोलॉजिकल जो मेथड के स्टेप्स हैं, पहले रिकग्निशन ऑफ प्रॉब्लम, ये जो ये मलेरिया स्प्रेड कैसे होता है ये प्रॉब्लम थी, फिर ऑब्जर्वेशंस थी कुछ एएफए किंग की, देन हम हाइपोथेसिस फार्मूलेट की, देन हम उसके बेस पे दो डिडक्शंस में की, देन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, एक्सपेरिमेंट रोनाल्ड रॉस ने परफॉर्म किया था, ठीक है। देन हमारे पास जो रिजल्ट्स आए वो कंफर्म किया कि मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम एंड स्प्रेड मलेरिया, ठीक है। तो इसमें ये आ जाएगा। सो ये हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। होपफुली आपको समझ आ गए होंगे। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।